भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा योग सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जो कि 2 दिवसों का आयोजन है में आज 17 जून 2025 को आप सभी गणमान्य अतिथि वक्ताओं, सम्मानित प्रबुद्ध जनों एवं सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर रुचि खरे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक है योग, ज्ञान एवं अनुभव का संगम। योग, a confluence of knowledge and experience. With Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji, as the inspiration behind this open discussion on yoga at global level, and guidance of respected Vice Chancellor Professor Mandavi Singh ji, an open discussion on yoga is being realized today for the first time. Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya students and staff are greatly honored to have the gracious presence of Honorable Chief Guest Padma Vibhushan Sonal Man Singh ji, an internationally acclaimed dance exponent and former member of Rajya Sabha. Here, Madam, with utmost humility, we heartily welcome you in this webinar. Yoga, the fusion of wisdom and practice. Originating from ancient India, yoga represents a harmonious blend of profound philosophical insights and transformative personal practices. This integration of Indian knowledge and experience serves as the foundation of yoga, guiding practitioners towards holistic well-being and self-realization. Knowledge, the philosophical foundation of yoga. At the core of yoga lies a rich tapestry of philosophical teachings that offer a roadmap for understanding the self and the universe. Central to this is the dualistic framework of pure consciousness and materialistic nature as articulated in the Yoga Sutra of Patanjali. The Yoga Tattva Upanishad emphasizes the symbiotic relationship between knowledge and yoga, asserting that both are essential for realizing the Param Satya and Mukti. The text defines Gyan as that which enables one to recognize the true nature of moksha, salvation as the supreme seat and characterized by truth, consciousness, bliss. The subject experts have been invited from all over the world. They are, besides our Honorable Chief Guest, Dr. Kamta Prasad Sahu from Haridwar, Padma Shri Ranjana Gohar from New Delhi, Padma Shri Dr. Rajeshwar Acharya, former HOD Gorakhpur University, Gorakhpur, Dr. Prem Dave, former Professor, University of Rajasthan, Jaipur, Dr. Keval Nayak, HOD School of Indological Studies, Mauritius, Jagat Guru Ramanand Swami Shri Ram Dinesh Acharya Ji Maharaj, Ayodhya, Dr. MP Sadra Supethium, Paris, visiting lecturer in Sri Lanka, Dr. Alok Tiwari, Yoga teacher, Ayodhya Dham, Dr. Parvati Datta, Director, Mahagami Gurukul, Aurangabad, Dr. Om Narayan Avasthi, Yoga expert and Ayush medical officer, Ram Manohar Lohia University, Dr. Ajay Mohan Srivastav, Ayodhya Dham, and Professor Tim Hoffman, who is joined us from Japan. अब मैं आप सबके समक्ष माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को आमंत्रित करती हूं। आप सभी का भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय वेबिनार जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित है, मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारे बीच माननीय डॉक्टर सोनल मान सिंह जी उपस्थित हैं। आज के इस वेबिनार का उद्घाटन कर रही हैं, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमारी प्रेरणा स्रोत है।
हम लोग लगातार आपको सुनते हैं मैडम, और मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट, सारा स्टाफ और आपके ज्ञान से हम पोषित होते हैं, पल्लवित होते हैं। यदि मैं कहूँ कि आप भारतीय संस्कृति और नृत्य की दूत हैं हमारे देश की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रचार में, उत्थान में, उसको सहज रूप से लोगों तक पहुंचाने में आपका योगदान अतुलनीय है। ज्ञान और योग का अनुभव जो विषय है इस वेबिनार का, मुझे लगता है कि आप में चरितार्थ होता है। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज का विषय है ज्ञान और अनुभव का संगम। शरीर और आत्मा का जो समन्वय है, संयोग है, वो योग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैं कथक नृत्य से जुड़ी हुई हूँ। ये जन्म तो मेरा नहीं लगता है कि कथक नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा कर पाई, पर उसको समझ पाई हूँ बस। मैडम, आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं योग करती हूँ, योग करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा मन और शरीर शांत हो गया है और अब मुझे अभ्यास करना चाहिए, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, तो योग हमारे मन शरीर को शांत तो करता है, पर उसके बाद जैसे ही नृत्य के साथ हम जुड़ते हैं तो एक आनंद जो होता है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने डांस को योग से आगे बताया है और आज आप बताएंगे भी, आगे की स्थिति बताई है। और मुझे लगता है कि ये संगीत से जुड़ा व्यक्ति, नृत्य से जुड़ा व्यक्ति उस हद को, उस सीमा को, उस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी विधा के साथ, संगीत के साथ, नृत्य के साथ या न्याय कर सकते हैं, और हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके साथ हम जुड़ के अपनी शिक्षा को, भारतीय शिक्षा को उत्थान की ओर, विकास की ओर हम ले जा सकते हैं। आज ये जो वेबिनार आयोजित हुआ है वो उत्तर प्रदेश शासन और माननीय कुलाधिपति महोदया की प्रेरणा से हुआ है, और इस 2 दिवसीय वेबिनार से हमारे शिक्षक, विद्यार्थी और सामान्य जन भी लाभान्वित होंगे। आज का जो योग है वो संभावनाओं से भरा हुआ है। आज योग को हम शिक्षा के साथ देख रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ देख रहे हैं, प्रकृति के साथ देख रहे हैं। प्रकृति और योग का समन्वय, मैडम ने जो प्रोग्राम प्लान किया है उसमें प्रकृति, पर्यावरण को लेकर भी इस 1 महीने के कार्यक्रम में उन्होंने निर्देश दिया है। अब देखिए, सूर्य नमस्कार जो करने की बात मैडम ने निर्देश दिया है, आदरणीय गवर्नर मैडम ने, सूर्य नमस्कार अब देखिए प्रकृति के साथ है, एक एक आसन के साथ जो मंत्र है और जो स्मरण है सूर्य को लेकर, वो ये दर्शाता है कि प्रकृति, आध्यात्म, दर्शन और संस्कृति से हट के हम अपने विकास को, जीवन को नहीं देख सकते हैं। और आज हमारे बीच माननीय महोदया सोनल मानसिंह जी उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आपके वक्तव्य से हम सब आज बहुत प्रभावित होंगे, हम लाभान्वित होंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप कृपया अपना वक्तव्य आप हमारे बीच रखिए। आपका छोटा सा परिचय ये देना चाहेंगे और आपका संक्षिप्त में दीजिएगा। जी। धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदया। अब मैं परम आदरणीय पद्म विभूषण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। Dr. Sonal Mansingh is an iconic cultural personality of India, internationally renowned as an artist, cultural educator, guru, scholar, author, motivational speaker, kathakar, and social activist. She is acclaimed for her ability to interlink cultural interpretations of philosophy, literature, sculpture, and mythological parables with their influence on India's social cultural fabric. As a celebrated dancer, Dr. Mansingh has uniquely used her art to address significant issues such as ecological imbalance,
environmental protection, women's empowerment, and social justice, particularly for marginalized communities. Her creative contributions have led to path-breaking choreographies that have inspired audiences globally. Dr. Mansingh has performed, lectured, and conducted workshops in over 90 countries. Dr. Mansingh's commitment to India's cultural heritage extends beyond dance. She has taken significant leadership roles in various cultural institutions. She has served as chairperson of Sangeet Natak Academy, the National Academy of Music, Dance and Drama, and is currently serving her second term as a trustee at the Indira Gandhi National Center for the Arts. She is also visiting professor at IIT Kharagpur and a member of the Society of Indian Institute of Advanced Study in Shimla. Dr. Mansingh's significant contributions to Indian culture have earned her numerous awards and honors: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Sangeet Natak Academy Award, Rajiv Gandhi Excellence Award, Sangeet Natak Academy Ratna Fellow, Kalidas Samman, Kameshwari Award, Nritya Chudamani, Bhai Veer Singh International Award, and honorary doctorates, Doctor of Science, honoris causa from GB Pant University, Uttarakhand, DLit from Sambhalpur University, Orissa, DLit from KIIT University, Orissa, and DLit from Rabindra Bharati University, Kolkata. Her life continues to be a testament to the power of art, culture, and perseverance, embodying the philosophy of art as a means to foster social change. We heartily welcome you, Dr. Sonal Mansingh ji. बहुत बहुत धन्यवाद मांडवी जी, आपने मुझे याद किया और ऐसे शुभ अवसर पर तो आप सबको और आपके जो श्रोतागण हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ। और आज आदि योगी शिव नटराज, आदि योगिनी नटेश्वरी भगवती पार्वती और जितने हमारे योग परंपरा के गुरुजन हो गए उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। ये विशेष शब्द जो है योग, उसकी व्याख्या तो बहुत बार हो चुकी है, किंतु उस व्याख्या का अर्थ समझकर कहीं यदि कुछ क्षण के लिए हम अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे शब्दों से जो कहा जाता है वो हर वक्त जीवन में उतारना मुश्किल हो जाता है। शब्दों की तो माया जाल होती है, लेकिन क्या करें, शब्दों के द्वारा ही हमें कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलूंगी, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि आई डोंट नो आपके ऑडियंस में जो भी होंगे। मैंने सबसे पहले लिखा है कि विस्मय, जो विस्मय हमारे नाट्यशास्त्र में है, अद्भुत में विस्मय है रस में। Yoga as the basis of life is all about wonderment. ये मैंने अनुभव किया है और मेरा अनुभव मैं आपसे साझा कर रही हूँ। So let's begin with that moment when I stood transfixed in front of Mount Kailas, indeed in the presence of Swayam Nataraj and Ma Nateshwari, the south face of Kailas, जहाँ 12-14 हजार फीट जो भी है अष्टपथ। Wonderment went with awe, disbelief, deep gratitude, love, million shades of devotion, all merged into Vismay. And as I started dancing, all physical and mental bonds melted away. Was I there? Who was dancing? I looked at myself, the Adi Yogi watching, Nirvikar, but Nateshwari Shakti watched with indulgent smile, prodding me on that just dance. That was
that they were true yogic moments where मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, मन, जो हम ये कहना चाहते हैं, जो अलग अलग हमारे एलिमेंट्स हैं, all melted on one centralized point. So how did that happen, that miraculous experience? भगवत गीता 2रा अध्याय 50वां श्लोक, उसमें आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, constantly working to achieve excellence in one's work, chosen field of work, activity, itself is yoga. पातंजल योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने तो कहा है, सबसे पहला उनका सूत्र यही है कि योगश जो क्या है, अरे मैं चित्त को निर्विकार करना, चित्त को निश्चल करना, अभी आएगा याद, देखिए मैं क्या कहूँगी, इसमें ये भी है. In my case, it was decades of learning, practicing, performing, teaching, in relentless pursuit of that aha moment of bliss, which could translate as कर्मसु कौशलम, जो आपको आनंद की उन क्षणों तक ले जाता है. Patanjali Yoga Sutra, authored by Rishi Patanjali, gives 8 stages, 8 of evolution, Ashtanga Yoga. Yam Niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसको हम कहते हैं बहिरंग योग, यानी बहिर अंग योग. ध्यान, धारणा और समाधि, ये हैं अंतरंग, internal esoteric yoga. Being hierarchical, our body and mind have to be prepared, stage by stage, step by step, with patience and dedication to comprehend this. कोई जल्दबाजी इसमें नहीं चलती, no shortcuts. YouTube देख के कर लिया, Insta देख के कर लिया. It doesn't happen that way. Google ने बता दिया, no hurry. Without mastering, one can't move to the next stage. और इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है. एम क्या है, ध्येय क्या है, गोल क्या है? तो लिखा है, to achieve strong, beautiful body with supple, strong mind, disciplined lifestyle, regular habits. To achieve self-realization, one of the goals. To become selfless, another goal. To think of others and act accordingly, the third one. To go for social well-being, which translates as common good. तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, बाद में दूसरों की सहायता करें. जब हम विमान में उड़ते हैं, मैं इसी क्षण मुझे हाथ जोड़ के नमन करके उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी है जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सदगति को प्राप्त हुए. तो जब आप विमान में बैठते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्या करना. उसमें ये भी है, पहले अपनी कुर्सी पेटी बांधिए, बाद में बच्चा है तो उसकी बांधिए. पहले ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगाइए, बाद में उनके मुंह पे लगाइए. तो ये योग जो है वो ऐसी साधना है कि जो आपको तो उत्कृष्टतम शिखर पर ले जाती है, लेकिन जब आप उसका उपयोग करते हो फॉर द कॉमन गुड, समाज के लिए, उत्थान के लिए, कुछ आदर्श के लिए, तो वो सेवा योग बन जाता है. एक नया योग, पुराना योग जो कह लीजिए. इसमें मैं ये भी जोड़ देती हूँ कि हम लोग तो कलाकार हैं और वो भी दर्शनकारी कलाओं के कलाकार हैं जो
रंगमंच पर आकर बड़ी बड़ी सभाओं में श्रोताओं, वक्ताओं के साथ, दर्शकों के साथ हमारी को साझा करते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत होता है। तो ये हम अपने लिए तो पहले करते हैं कि हम उसको साधें, और फिर उस आनंद का अनुभव हम औरों को कराएं। तो मैंने हमेशा यही समझा है और कहा भी है कि नृत्य बीइंग विजुअल आर्ट, where audio, visual, everything comes together. मन, बुद्धि, अहंकार तो ये बार बार रटन करते हैं, लेकिन उसका जो एक बाहरी स्वरूप है वो हमें कहाँ तक पहुंचाता है, जिसको हम आज कहते हैं आउटरीच। तो योग की आउटरीच कला के द्वारा बहुत बढ़िया होती है यदि कलाकार अपने आप को एक योगी समझे। आगे चलते हैं। The 8 dimensions of अंगस, जो हमने आपको 8 अंग बताए अष्टांग योग के, they represent human personality। वो पतंजलि ऋषि ने ऐसे नहीं लिखा है। तो यम नियम वगैरह जो है उसके साथ जोड़ती हूँ। पहला है सोशल, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है फिजिकल, चौथा है फिजियोलॉजिकल, पांचवा है मेंटल, छठवां है साइकोलॉजिकल, सातवां है इंटेलेक्चुअल और आठवां है स्पिरिचुअल, जहां समाधिस्थ की अवस्था आती है। ये मैंने पूर्व भूमिका कुछ बांधने का प्रयास इसलिए किया है कि योग पर्व को मैं जिस प्रकार, जिस दृष्टि से देखती हूँ वह नृत्य से ही जुड़ी है। उसी दृष्टि ने मुझे प्रेरित किया है पूरे जीवन में। आगे बढ़ो और सीखो और घिसो। मेहंदी का रंग तभी गाढ़ा होता है जितना ज्यादा घिसा जाता है। तो इस शरीर को, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका मीडियम है, उसको तो घिसते रहना ही है। उसको बिल्कुल सुर में लाना है। सितार को सुर में लाना है, मृदंग को सुर में लाना है, शरीर को भी सुर में लाना है। आपके सारे अवयव सामंजस्य से, समरसता से काम करें। और जिसका कंट्रोल आपका मन, ब्रेन कहते हैं, वो करता है। मन को कौन प्रेरित करता है? और मन को जो प्रेरित करता है वो आपके अंदर बैठा हुआ गुरु का उपदेश है, आपकी अपनी साधना है, आपका लक्ष्य है कला के द्वारा आनंद की उपलब्धि कराना। ये मेरी दृष्टि है, ये हमारे पूर्वजों की भी दृष्टि रही है। जितना मैं समझ पाई हूं कि भारतवर्ष के सनातन दर्शन शास्त्र की एक ही बिंदु में समाप्ति यदि करनी हो, what is the bottom line, one word with which you can say everything? आनंद। समुद्र की तरह, समुद्र की अथाह गंभीरता, डेप्थ, जहां पर वो आनंद शांत रूप से बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर जो लहरें आ रही हैं वो है आपके सुख दुख अनुभव। ये सब हम नृत्य में भी दिखाते हैं। उसके बाद आनंद में ही समाप्ति होती है, वो है हमारे नृत्य में भी समाधि हो जाती है। आई एम श्योर कि जो सुन रहे हैं उसमें कलाकार गण भी हैं और गुरु वर्ग है। ये इस आनंद के कुछ अनुभव क्षणों का जरूर आपको हुआ होगा। तो मैं रीजन फॉर पूर्व भूमिका इसकी क्यों है मैं बता रही हूँ। मैंने योगाभ्यास किया है
सिखाया भी है। आज भी मेरी नृत्यशाला में योगासन सीखने अनिवार्य है। और मैंने पिछले कुछ योग पर्वों में बनाई थी छोटी छोटी फिल्म, मिल जाएगी आपको मेरे YouTube में शायद, कि जिसमें हमने योग के जो आसन हैं उनके साथ, अभी बात मैंने सुनी, एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, ये सभी योगी हैं। प्रकृति जैसी बड़ी योगी कोई है ही नहीं। प्रकृति निर्विकार रूप से गर्मी भी देती है, ठंड भी देती है, बारिश भी करवाती है। प्रकृति फैली हुई है, सर्वव्यापी है। प्रकृति को हम नहीं भांप सकते। योगी का मन, योगी के अंतरतम की गहराई को कोई नहीं भांप सकता। हम तो मात्र कुछ चंद ऐसे हमें झलकें मिलती हैं। वैसे प्रकृति का जो रूप हम देखते हैं वो तो कुछ झलकें हैं, लेकिन उन झलकों में मैंने वृक्षों को योगी की तरह अड़िग खड़े हुए देखा है, सुंदर फूलों को खिल के हंसते हुए देखा है, अपनी सुगंध बिखेरते हुए। न वो हमें कहते हैं कि देखो देखो हम कितने सुंदर हैं, सूंघो हमारी इतनी सुगंध को, क्यों हमें ऐसे अनदेखा करके चले जा रहे हो। कोई फूल आपको ये नहीं कहता, निर्विकार है वो, अपने योग अब उसमें खड़े हैं, समाधि में बैठे हुए खड़े हैं, और जब समय होता है तो वो भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो कल था वो आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन क्षणे क्षणे नवताम उपैति, प्रत्येक क्षण में कुछ नवीनता है, उसका भी अनुभव है। both sound very contradictory, but they are not contradictory. Change is the only surety. लेकिन उस चेंज में भी हमको, यदि हम अनुभव कर सकते हैं कि ये स्थिरता है, यही है वो जो जिसको पाने के लिए भल भलों ने हजारों वर्ष तपस्या की है। तो मैं ये कह रही थी कि आज भी मेरी नृत्यशाला में योगासन अनिवार्य है। तो ये तो बहिर्योग है, ये बाहरी अंगों का योग है, लेकिन बाहर से ही तो अंदर जा सकते हैं ना। आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। तो बाहर से ही अंदर जा सकते हैं, जिसके लिए शरीर वो दरवाजा है, शरीर वो माध्यम है, और बिना शरीर के मात्र आत्मा जो अमर है, अग्राह्य है, दिखती नहीं है, लेकिन उसी को जानने के लिए अनुभव करने की प्रक्रिया हमारे नृत्य में है। तो यदि शरीर नहीं है तो आत्मा कहते अमर है, हाँ तो पकड़ के दिखाओ ना। किसी ने गुरु जी से कहा कि मुझे बहुत हमेशा सर दुखता है गुरु जी, अब आप इसको ठीक कर दो। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, वो तुम्हारा जो मन, ये दिमाग, ये सर दुखता है ना, वो दुख मुझे जरा दे दो हाथ में, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे सर के अंदर है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे सर के अंदर वो भी है, वो तत्व भी है, उस पे कंसंट्रेट करो। ये सर दुखता है, सर दुखता है, सर दुखता है करके आजकल जो बच्चे हमारे, आई एम डिस्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी लो, ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, उनको यही कहना है कि भाई तेरा डिस्ट्रेस मुझे हाथ में लेके दिखा दे तो मैं उसको नष्ट कर दूं, उसको ठीक कर दूं। ये हंसने की बात नहीं है, इसमें जो एक रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को यदि हम पकड़ सके तो ऐसा होगा। आई एम शेयरिंग विथ यू, बड़ाई नहीं है किसी बात की। आज तक मेरा 82वां चल रहा है,
सर एक क्षण के लिए भी नहीं दुखा। कितने टेंशन से गुजरे हैं, प्लेन पकड़ना है, प्रोग्राम हो गया है, कपड़े लपेट के भागना है, ट्रेन से उतर के गाड़ी में थिएटर जाते जाते मेकअप भी कर लेना है, जूड़ा भी बांध लेना है, ये रिहर्सल है, ये है, ये वो है, ये फलाना है, ढिमका है। 1000 तरीके के टेंशन से हम गुजरते हैं 24/7 365। और मेरा तो आज आप पद्म विभूषण कह रहे हैं, आप सब गायब हो गए, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, मैं भी गायब हो गई हूँ। हेलो? नहीं मैडम, आप हैं। मैं हूँ ना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। क्या हुआ? ठीक है, स्क्रीन क्योंकि मेरा तो स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। स्क्रीन क्या हुआ? ठीक। क्या? तो ये इन सारी चीजों से भी जो हम चलित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चलित इतना नहीं होते हैं कि हम सब छोड़ के सर पे हाथ दे के बैठ जाएं। ये तो योग है, यही है योग आपके जीवन का। क्रिया योग है, कर्म योग है, सहज योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और ये बहुत से हठ योग है। बहुत सारे योगों के ऊपर मैं मानती हूँ नृत्य योग। काफी वर्षों से नृत्य योग मैं शब्द बोल रही हूँ। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता था, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरा जो अनुभव है, मैं हठ योग भी सीखी हूँ, करती भी हूँ, और नृत्य करते करते, साधना करते करते, उत्प्लवन करते करते, भ्रमरी करते करते, 40 मिनट का वर्णम पूरा करते करते, सहजता से करते करते जो अनुभव हुए हैं, गीत गोविंद करते करते यदि दर्शकों को भी अनुभव हो रहा है कि वहां श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण की लीला हो रही है। मुझे कहा गया है कई बार कि हमको तो दर्शन हो गए। दश महाविद्या, सन्नाटा, एक ताली नहीं बजी, मेरा सर रंगमंच पे, जमीन पे मैं टिकी हुई, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं कहीं खोई हुई थी या कुछ पाकर वहीं पे पड़ी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। कह रहे थे बाद में तो जो तालियां बजी और जो भी हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन क्या था वो? तो यदि योग में समाधि पराकाष्ठा है, तो हमारी दर्शनकारी कलाओं में भी यही नृत्य योग, संगीत भी योग है, लेकिन नृत्य में शरीर भी है, बाकी में शरीर नहीं है। तो ये जो शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि, ये वो सब वो नृत्य में ही आपको दिखता है, नृत्य में ही अनुभव उसका होता है। इसीलिए हमारे भगवान शिव शंभु को नटराज की उपाधि दी गई है। ये भी मैं वर्षों से कह रही हूँ कि न नेता राज, न कवि राज, न गीत राज, न वैद्य राज, नटराज। तो हमारा नृत्य योग जो है वो इतना पावरफुल है, इतना श्रेष्ठ है, इतना, जो हम कहते हैं त्रिवेणी संगम तो है 3 नदियों का, हमारी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का। नृत्य में तो अनेक प्रवाहों का संगम है। इसीलिए हम जो आत्मा की मैं बात कर रही थी कि इसीलिए नृत्यकार अंत तक बने रहते हैं, सशक्त चपल रहते हैं। अब समझते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है। योग की हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि योगी ध्यानस्थ पद्मासन में बैठा है, स्टैटिक योग है। आप एक आसन करते हो तो दैट इज स्टैटिक। सूर्य नमस्कार भी करते हो तो एक एक उसके जो 12 वो है स्टेजेस हैं, आसन हैं, धीरे धीरे करके हो गया सूर्य नमस्कार, भगवान सूर्य की आराधना हो गई। यहाँ इस डायनामिक योग,
इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यदि आप रंगमंच पे खड़े भी हो तो आप मात्र स्थिर नहीं हो, उस स्थिरता में भी डायनामिज्म है। जैसे हम कहते हैं कि शून्य, शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति, तो शून्य translates as void, not vacuum. VOID, void. From void arises, from void emerges the cosmos, the universe. And once again, it submerges, जिसको हम कहते हैं सृष्टि, स्थिति, लय. All that is the void, शून्य. और ऐसी शून्यता में यदि क्वचित हम खड़े हो गए, उस स्थिरता में क्या डायनामिज्म है, उसका अनुभव आपको होना चाहिए। और जब होता है तो वही पूर्ण योग है। तो टेक्निक, इसका ग्रामर क्या है? तो शारीरिक क्रियाएं which take years to learn, understand, master, activate, but the logic, reason and benefit has to be understood. Top to toe, eyebrows, eyes, neck, arms, fingers, torso, waist, knees, feet, आटे को गूंदने की तरह साध कर तैयार करना होता है। जैसे जो गायक है वो क्या अपने गले को गूंदता है, अपनी आवाज को, नाभि से निकल रही है, फेफड़ों से निकल रही है, गले से निकल रही है। यू हैव टू रियलाइज ऑल द स्टेजेस। और जब फिर एक स्वर लगता है, परफेक्ट श्रुति पे स्वर लगता है, तो नाद ब्रह्म, वो नाद योग कहलाता है। तो वैसे ही हमारा जो नृत्य है उसमें आटे को गूंदने की तरह शरीर को साधना पड़ता है। और उस साधना के लिए आपका मन भी सख्त होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। शरीर कहता है मैं थक गया हूं, शरीर तो महाचोर है, मेरे गुरु कहते थे प्रोफेसर यूएस कृष्णराव सर, भरतनाट्यम। Oh, body is a chore, body is a daku, is a bandit. It will tell you, I'm very tired, just leave it for today. Just, let's have a little rest. You have to tell your body, sorry, I am the master, not you. तो ये मैंने मेरे एक्सीडेंट के बाद अनुभव किया कि जब मेरी हड्डी पसली टूट गई, स्पाइन टू 12वीं वर्टेब्रा टूट गई, पूरी पाउडर हो गई, फिर खड़ी हो गई मैं भगवती की कृपा से, और अभी तक खड़ी हूं। कैसे वापस में आई, रो रो कर, गूंद गूंद कर, मन को ऐसे सख्त बना के शरीर को साधा फिर से। तो ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ सारे मेरे अपने निजी अनुभव की बातें भी हैं। तो ललाट तिलकम है, शकटास्य गंगावतरण है, लता वृष्टिकम, जो हम 108 करण कहते हैं, वो तो सारे योगासनी तो हैं। और क्या है, नृत्य के जो करण है वहां पे कुंभकोणम के सारंगपाणी मंदिर में, या चिदम्बरम के हमारे शिव मंदिर में, यहाँ पे बृहदेश्वर में जो 87 करण है। तो at one glance some look like pure acrobatics, others more gentle and graceful. Each of the 108 karanas to do, to perform, to activate, combine and posit main limbs of the body in specific balance that benefit the dynamics of the body mind combined. देखिए, ancient texts on art of dance in India give full shloks and description. These are not static postures, they indicate the full movement in that moment. योग भी यही है, आपने एक आसन में जाने के लिए क्या प्रक्रिया की और फिर उस आसन में रुके। यदि आप आसन में नहीं रुकते हैं तो आपको लाभ नहीं होता है। एंड देन अगेन टू रिजॉल्व दैट आसन। यही तो बात हम कर रहे हैं। जीवन में भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आए, हावी हो गए, वी हैव टू रिजॉल्व। टाइम, तो शरीर को भी समय चाहिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कब तक आपने होल्ड करना है वो आपके ऊपर है। आपके गुरु ने जो आपको सिखाया उसके ऊपर है। Exactly as the world famous Nataraj image, which symbolizes the moment of I within the storm.
बवंडर उठते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से वो एमिनेट करता है. दैट इज कॉल्ड आई विद इन द स्टॉर्म. नटराज की जो कल्पना ऋषि मुनियों ने उनके समाधि में, इन द डीपेस्ट मेडिटेशन, उन्होंने जो देखा, उसको उन्होंने जो मूर्त स्वरूप दिया, आहा, विश्व में कहीं नहीं है. अब क्यों नहीं हो सकता? यहाँ हमारा नृत्य संगीत योग है, योग साधना का मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है. यदि आप मोक्ष चाहते हो तो, मैं तो मोक्ष नहीं चाहती हूँ. मैं तो यही प्रार्थना निरंतर करती हूँ कि भगवती मुझे जन्मों जन्म इस भूमि की मिट्टी में मिला दे, उत्पन्न कर. यहाँ जो है विश्व में कहीं नहीं है. तो इसीलिए 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की कल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी 2015 में, और उसको यूएन में ले गए. वहाँ 192 देशों ने समर्थन दिया पहली बार में ही, और उसके बाद तो ये विश्व भर में फैल गया. अनेक देशों में राष्ट्र प्रमुख और सारे लोग योग करने लगे हैं. कितनी बड़ी बात है. तो उसी तरीके से हमारी जो कलाएं हैं वो भी विश्व भर में फैल चुकी हैं, और उस योग को भी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं. और अंत में मैं ये कहूंगी कि जो स्थिरता मांडवी जी कह रही थी कि एक आनंद के अनुभव से वो अपने योगाभ्यास से बाहर आती हैं, या उस अभ्यास की अनुभव को लेके चलती हैं, तो यही अनुभव हमारा जीवन प्रकाशित करता है, प्रकाशमान करता है. और तरह तरह की जो हमारी, मैंने पहले कहा कि 24/7 हमारे सिचुएशंस आती हैं दिन भर में, उससे निपटने के लिए, उसको समझने के लिए कि वो सिचुएशंस हम पे हावी ना हो जाएं, वो मन की स्थिरता हमें योग देता है, नृत्य देता है, नित्य अभ्यास देता है. और मैं अब आपको अंत में ये कहूंगी कि समथिंग मिस्टिकल इज एक्सपीरियंस्ड, समथिंग दैट इवन द दर्शक इज अनेबल टू एक्सप्लेन. जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, रसानंद ले रहे हैं, वो एक्सप्लेन शब्दों में नहीं कर सकते. फिर भी मैंने कुछ ऐसा लिखा, इट हैपन्स विदाउट वार्निंग बट हैपन्स लाइक कूल विंड ब्लोइंग, like ethereal light everywhere, like sound of silence and bliss immeasurable. आनंद का उदधि, आनंद समुद्र में आपने एक क्षण डुबकी लगा ली, और ऐसा प्रकाश, जो प्रकाश न सूर्य का है, न चंद्र का है, न तारों का है, लेकिन वो प्रकाश दिव्य है. तो dance as means to realization, to be joyous, strong and swastha, swa mein sthit. Easily said than done, I know. Yoga, like dance, is all about diligence, patience and maintenance. हम अपनी कार को मेंटेन करते हैं, अपने कपड़ों को मेंटेन करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, हाँ, समयानुसार उसकी मरम्मत करते हैं. तो शरीर की भी मरम्मत होनी पड़ती है, और मन की भी मरम्मत होनी पड़ती है. हर रोज दांत घिसते, टूथब्रश से, हर रोज नहाते हैं, गंदे कपड़े धो के पहनते हैं. वैसे हृदय के भावों को, मन के विचारों को साफ करते रहना पड़ता है. एंड देयर इज नथिंग बेटर फॉर द क्लेंजिंग प्रोसेस देन रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर अभ्यास ऑफ योग, नृत्य, जो भी आप साधना करते हैं. I offer greetings to all dancers, yogis, gurus, and would-be dancers who are also yogic dancers.
बिकॉज डांस इज नृत्य योगा। आप उस शिखर तक तो नहीं पहुंच सकते, कैलाश तक। कैलाश पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन कैलाश की प्रदक्षिणा तो हो सकती है, या कैलाश के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने, और न जा सको तो कैलाश के चित्र को देखकर ही हाथ जोड़ लें। क्योंकि मैंने जो दक्षिण मुख देखा जहां मैंने नृत्य किया, मैंने 2000 कपालभाति की थी करने से पहले, और 1500 2000 वो प्राणायाम के सारे जो अनुलोम विलोम सब करके मैं गई थी। तो आधा घंटा 29 मिनट मैं कर सकी। ये बात ही अद्भुत मुझे आज भी लगती है। 2006 की बात है, और मैं सभी को हाथ जोड़ के करबद्ध प्रणाम करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रधानमंत्री जी ने योग दर्शन कराया विश्व को, वैसा ही दर्शन हम सब करा सके अपनी कला के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। विचार, वाणी, व्यवहार, इन तीनों के द्वारा भगवती हम सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। योग कर्म सुकौशलम हम कभी ना भूलें, और भारतवर्ष की सनातन विचार परंपरा को, गुरु परंपरा को, योग परंपरा को हम हमेशा आगे लेकर चलें। प्रणाम। मैडम आपका बहुत बहुत आभार। और आप दिख नहीं रही हैं मुझे। अच्छा जी, अभी Right. जी मैडम, जितना मैंने आपको समझा है, मैं लगातार आपको सुनती हूँ, मैंने देखा भी है आपको, बहुत सुनती हूँ। और अभी कुछ दिनों से लगातार जब आपने डांस को हाईएस्ट फॉर्म कहा, योग का, वो दिन मुझे दिन भर झकझोर दिया। आपको सुनना मेरा ऐसा अनुभव था, मुझे लगता था कि यदि योग को नृत्य और संगीत के साथ देखना है, जानना है, तो मैं आपको यहाँ बुलाऊं यूनिवर्सिटी में और सब आपको सुने। वो दिन था जब मैंने आपका वीडियो जो देखा था और सुना था। और मुझे लगता है मैडम, आपने नृत्य के साथ जो आपका जुड़ाव है, नृत्य की जो साधना की है, आपने अपने लिए किया है। आपने उस आनंद को हासिल किया है, और वो आप हम सब तक पहुंचा रही हैं, जो कि महान योगदान है आपका। और स्टूडेंट्स को मैं आपके आने से पहले भी कह रही थी कि इनको सुनना, इनको जानना, ना जाने कितनी संभावनाएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी आपको सुनने के बाद। मैडम आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे बीच आई हैं, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। भातखंडे विश्वविद्यालय के पूरे परिवार की ओर से मैं आपके प्रति आभार और आपको प्रणाम करती हूँ। शिवमस्तु, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। मैडम, आपके इस अद्भुत अनुभव के निचोड़ से हमारा तन मन अभिसिंचित है और हम सभी विस्मय बोध में हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। आपके इस सार गर्भित उद्बोधन से हमारे विद्यार्थी और स्टाफ लाभान्वित हुए हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार।